Hello children, welcome to your ABS class. Children, I hope you all are safe in your homes and you are attending your online classes regularly. Children, this is the continuation of chapter 2. Chapter 2 we have been doing since past few videos. I am explaining the chapter to you. In this chapter also I will be continuing the explanation of the chapter, and depending on the time we will start the exercise also. We will do exercises that are given at the end of the chapter, as well as I will frame some exercises for you. I'll give you some exercise from the content of the chapter also, covering the whole chapter. Now coming to the explanation part. Children, in this chapter till now we have completed many things and only a small portion of the chapter is left that I will be explaining in today's video. Let's write down the points that we discussed in this chapter. First point we discussed is the need of food. Why we need food. Okay, why we eat food. First point that we discussed is this one. Second, we discussed our source of food. Source of food we discussed plant and animal. Then we discussed the things that we get. Things, yeah, food items. Let me change the marker. Things or food items we get from plants. Then we discussed various parts of plant that we eat. है ना, जो जो चीज़ें हमें प्लांट से मिलती है वो हमने डिस्कस किया. फिर ये भी डिस्कस किया था कि हम प्लांट्स कौन से प्लांट का कौन सा पार्ट खाते हैं, ये भी डिस्कस किया था ना. फिर हमने डिस्कस किया था फूड वी गेट फ्रॉम एनिमल्स से जो हमें फूड मिलता है, दैट ऑल्सो वी डिस्कस्ड, isn't it? एनिमल से हमको कौन कौन सी खाने की चीज़ें मिलती हैं, दैट ऑल्सो वी डिस्कस्ड. देन वी डिस्कस्ड न्यूट्रिएंट्स. खाने में जो ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके लिए हम खाते हैं, वो चीज़ें कौन कौन सी हैं, वो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, उनको हम क्या कहते हैं, दैट वी डिस्कस्ड. ओके, वी ऑल्सो डिस्कस्ड, बहुत डिटेल में नहीं लेकिन हमने डिस्कस किया वेरियस वेज इन विच फूड इज़ कुक्ड. कुकिंग मेथड को हमने डिस्कस किया था. बहुत डिटेल में नहीं लेकिन थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था कुकिंग मेथड को, इज़ इट? थोड़ा हमने इसको डिस्कस किया था. ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में. हमने स्टार्ट किया था हेल्दी फूड हैबिट्स के बारे में. ये सब जो है हम इसको ब्रीफली एक बार हम इसको कर लेते हैं. वाई वी नीड फूड. वी नीड फूड टू ग्रो, टू गेट एनर्जी टू डू वर्क एंड प्ले, to get ourselves protected from disease and to stay alive. A source of food. We get food mainly from plants and animals. Food items that we get from plants are fruits, vegetables, cereals, oilseeds, spices. All these we get from plants. Various parts of plants that we eat. We eat roots of some plant, we eat stem of some plants, we eat leaves of certain plants, we eat fruits of certain plants, we eat seed of certain plants, we eat various parts of plant. Then food that we get from animals. We get milk, meat, fish and honey from animals.
एक चीज़ मैं यहाँ पे लिखना भूल गई, दैट इज द कैटेगरी ऑफ वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियंस में भूल गए। वेजिटेरियंस एंड नॉन ओके। फूड वी गेट फ्रॉम एनिमल्स डिस्कस किया हमने। देन डिस्कस किया न्यूट्रिएंट्स जो हमें खाने से मिलता है, चाहे वो प्लांट से मिले चाहे वो एनिमल से मिले। जो न्यूट्रिएंट्स हमको मिलते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट, और इनको हम कहते क्या है? बॉडी बिल्डिंग फूड, एनर्जी गिविंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड। इस कैटेगरी में हमने फूड को डिवाइड कर दिया है। देन कमिंग टू कुकिंग मेथड, हम जो भी खाते हैं उसको हम प्रॉपरली कैसे कुक करते हैं। देयर आर वेरियस वेज in which we cook our food, like boiling, steaming, frying, roasting, baking. These are the various methods by which we cook our food, and we should eat properly cooked food. If we are eating cooked food, we should be eating properly cooked food. Then there are certain food that can be eaten raw, जिनको हम कच्चा खा सकते हैं, that we should eat raw. Then the two categories we discussed, vegetarians and non-vegetarians. The people who eat food that we get from plant only, they are called vegetarians. And the people who eat both the types of food, food that we get from plant and food that we get from animal, they are called non-vegetarians. Then there is one more category called vegans. They do not eat even, they are purest form of vegetarians, which means they do not eat any plant product, whether it is milk or honey, वो भी वो नहीं खाते हैं। They are called vegans। ठीक है, ये हमने इतना डिस्कस कर लिया है अब तक। अब हम पहुँचते हैं जो हम डिस्कस कर रहे थे हेल्दी फूड हैबिट्स को, वो हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। अब इसको मैं रब कर देती हूँ, देन विल स्टार्ट आवर टॉपिक। ओके, नाउ कमिंग टू गुड फूड हैबिट। ये हमने इसमें डिस्कस जो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, दैट आई ओरली डिस्कस विथ यू। फर्स्ट इज वी शुड ईट ऑल टाइप्स ऑफ फूड, वी शुड नॉट बी फसी इन ईटिंग फूड। देन we should take our food, we should take our meal at proper time, and at fixed time, सही समय पर और फिक्स समय पर लेना चाहिए। We should wash our hand before eating and after eating. Before eating we should also we should wash our hand, and also after eating. Then we should take our food which is properly cooked. We should eat food that is properly cooked. Then always eat properly washed fruits. वही फ्रूट खाइए जो प्रॉपरली वॉश किए हुए हों। Eat properly washed fruits. Then eat salads. Salads contain raw fruits or raw vegetables, so eat salad daily. Then chew food slowly and properly. जो भी आप खाना खा रहे हैं उसको आप जब चबा रहे हैं, जब आप chew कर रहे हैं, तो chew it slowly and chew it properly. उसको well mannered way में, बहुत हड़बड़ाए में नहीं खाना चाहिए, तब वो खाना नहीं तो ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है। अब यहाँ तक हम कर चुके थे, अब इसके आगे वाला करेंगे। विल स्टार्ट फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स, ऑल दिस आई हैव एक्सप्लेन्ड। आइए तो नेक्स्ट जो हम पॉइंट लिखेंगे, हमने कितने पॉइंट्स लिख लिए थे? 7 लिखे थे। दिस इज द 8th पॉइंट। ओके, HEALTHY healthy, FOOD food, HABITS healthy food habits। ये हम इसका हम 8th पॉइंट लिखने जा रहे हैं।
Okay, we'll write the 8 point. First बाकी के जो 7 points हैं that I have already completed, वो मैं कर चुकी हूँ आपका. Okay. Eighth point is never overeat. Never overeat. कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए. नेवर ओवर ईट का मतलब क्या होता है? नेवर ओवर ईट मतलब जितनी भूख हो बस उतना ही खाना चाहिए. ऐसा नहीं कि कोई चीज़ हमको बहुत अगर पसंद है, सपोज यू लाइक समथिंग वेरी मच, तो उसको ज़्यादा खा लिया. कोई चीज़ आपको बहुत पसंद आ गई तो आपने बहुत ज़्यादा खा लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए. इट मे लीड टू इनडाइजेशन. इससे आपको होगा कि ठीक से खाना डाइजेस्ट नहीं होगा और फिर पेट में दर्द होने लग सकता है या दूसरे तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपको आ सकती है. सो नेवर ओवर ईट. ज़रूरत से ज़्यादा ना खाएं. कितनी भी कोई चीज़ आपको बहुत पसंद हो, आप एक साथ ना खाएं. थोड़ा थोड़ा करके आप खा सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ बहुत पसंद है तो, पर एक साथ नहीं खाना है आपको. ओवर ईटिंग नहीं करना है. ओवर ईटिंग से मोटापा भी बढ़ता है, ओबेसिटी भी बढ़ सकती है. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा नंबर 9. डू नॉट ईट अनहेल्दी फूड. ब्रैकेट में मैं लिख देती हूँ जंक फूड टू ऑफन. ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? नेवर डू नॉट ईट अनहेल्दी फूड और जंक फूड टू ऑफन. ये जो पॉइंट है अनहेल्दी फूड, इसको मैंने ब्रैकेट में जंक फूड की तरह लिखा है. तो अनहेल्दी फूड में सिर्फ जंक फूड ही नहीं आता है, लेकिन अनहेल्दी फूड का मतलब स्ट्रीट फूड भी होता है, क्योंकि वो हाइजीनिक वे में कुक्ड नहीं होता है, उतना हाइजीनिक नहीं होता है, तो वो भी अनहेल्दी फूड में आता है. और जंक फूड मतलब जिसमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए, जिसको खाने से हमारी बॉडी को कोई भी बेनिफिट नहीं होता है, दैट इज़ कॉल्ड जंक फूड, जिसको हम कबाड़ बोलते हैं. तो सिर्फ हमको खाने से क्या होता है? टेस्ट हमें मिलता है. लाइक बर्गर है, आपको टेस्टी बहुत लगता है, बट इट इनफैक्ट हार्म्स हमारे को हार्मफुल है हमारे लिए. वो ओबेसिटी होती है, ज़्यादा मोटापा बढ़ता है उससे. जितने भी तरह के आप जंक फूड जो होते हैं वो हमको सिर्फ टेस्ट के लिए होते हैं अच्छे, लेकिन हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर नॉट एट ऑल गुड. वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं. इसलिए हमें अनहेल्दी फूड नहीं खाना है. अनहेल्दी में हो गया जंक फूड भी हो गया, स्ट्रीट फूड भी हो गया, और द फूड विच इज़ नॉट कुक्ड इन अ हेल्दी मैनर. जो हेल्दी ढंग से अगर नहीं कुक्ड है कोई फूड तो वो भी उसके अंदर आ जाएगा. ओके. नेक्स्ट है नंबर 10. नेवर वेस्ट FOOD फूड AND एंड WATER. न खाना वेस्ट करना है, न पानी वेस्ट करना है. कभी भी आपको फूड एंड वाटर वेस्ट नहीं करना है. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेल्दी फूड हैबिट. उतना ही प्लेट में खाना लीजिए जितनी आपको भूख है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं. आपको और भूख लगेगी, थोड़ा और मन है तो आप बाद में ले सकते हैं, लेकिन एक साथ बहुत सारा खाना ले लें फिर उसको आप खा नहीं पा रहे हैं, फिर उसको आप डस्टबिन में डाल दें, दैट इज डज़ नॉट कम अंडर हेल्दी फूड हैबिट. खाना वेस्ट नहीं करना है. दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको एक टाइम भी प्रॉपर खाना नहीं मिलता है. वी आर ब्लेस्ड, वी आर लकी इनफ दैट वी आर गेटिंग आर ईच मील. हम अपना प्रॉपर मील खाते हैं, ब्रेकफास्ट खाते हैं, हम लंच खाते हैं, हम डिनर खाते हैं, बीच में स्नैक्स खाते हैं. वी आर रियली ब्लेस्ड, वी आर रियली लकी. बट देयर आर मैनी पीपल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ पीपल हु डू नॉट इवन गेट मील फॉर इवन वन डे अ मील, जिसको बोलते हैं वन टाइम
एक दिन टाइम का भी उनको प्रॉपर मील नहीं मिलता है। ऐसे में खाना फेंकना, खाना वेस्ट करना इज़ अ क्राइम। येस, इट इज़ अ क्राइम। खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप प्लेट में उतना ही लीजिए जितनी आपको ज़रूरत है। अगर और मन है तो और ले सकते हैं, ठीक है। और पानी तो उससे भी ज़्यादा प्रेशियस है। अभी बोलते हैं ना, एवरी ड्रॉप इज़ प्रेशियस। पानी एक अर्थ पे वैसे भी पानी बहुत कम है, और कई ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ तो पानी ऑलमोस्ट अंडरग्राउंड वाटर ख़त्म हो चुका है, वहाँ पानी के लिए लड़ाइयाँ हो जाती हैं। ऐसे भी स्टेट हैं इंडिया में जहाँ पर ऐसे प्लेसेस है जहाँ पर पानी को लेके लड़ाई हो जाती है लेडीज़ में या लोगों में। क्यों? क्योंकि वहाँ पानी बहुत कम है, पीने का पानी नहीं मिलता है, नहाने और बाकी चीज़ों का तो आप भूल जाइए। तो इसीलिए ये पानी जो है वो मनी से भी ज़्यादा प्रेशियस है। इट इज़ मोर प्रेशियस देन एनी प्रेशियस आइटम या प्रेशियस स्टोन्स, हीरे जवाहरात मोती जिसको बोलते हैं ना, रुपया पैसा, उन सबसे ज़्यादा प्रेशियस वाटर है। डू नॉट वेस्ट इट, उसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेल्दी फूड हैबिट दैट वी शुड नॉट यू वी शुड नॉट वेस्ट फूड एंड वाटर। ना पानी वेस्ट करना है ना खाना। पानी भी पहले आप आधा ग्लास लीजिए, पी लीजिए। अगर आपको और प्यास लगी है तो ही पानी लीजिए। ये नहीं कि एक ग्लास भर के पानी ले लिया और आधा पिया और आधा फेंक दिया। डोंट डू दिस। पूरा पानी पीना है तभी भर के लीजिए। ओके, these are the healthy food habits. So with this come to the end of this topic of healthy food habits. ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, और इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। नाउ वी विल मूव ऑन टू द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर। एक्सरसाइज अब हम करेंगे। नाउ बिफोर डूइंग द एक्सरसाइज दैट इज गिवन एट द एंड ऑफ द चैप्टर, वी विल डू एक्सरसाइजेज that are from the content of the chapter. पहले चैप्टर के बीच में से हम एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद करेंगे चैप्टर के एंड में दिए हुए एक्सरसाइजेज। चैप्टर के बीच से इसलिए पहले कर लेंगे क्योंकि उसमें पूरा चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, नाउ आई विल इरेज दिस। यू कैन कॉपी दिस इन योर EVS कॉपी। आप इसको अपनी EVS की कॉपी में नोट करेंगे। जो एक्सरसाइज मैं करवाने जा रही हूँ ये आपको EVS की कॉपी में करना है। नाउ फर्स्ट एक्सरसाइज इज एज यूजुअल, फिल इन द ब्लैंक्स। Children, as I have told you that this fill in the blank I will be giving from the chapter. लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बहुत टफ है, चैप्टर में बहुत इजीली आपको ये मिल जाएगा। फर्स्ट वन इज we all need dash to get ENERGY to work and play. ऑप्शन है हमारे पास। आई विल गिव ऑप्शन ऑल्सो, डोंट वरी। मनी and food. We all need blank to get energy to work and play. हमें क्या चाहिए to work and play? What do we need to work and play? We need money or food to get energy. Energy के लिए हमें क्या चाहिए? We need food. We need FOOD, food. Okay. Number 2. The TWO2 MAIN, main, SOURCE. The two main source of our food are dash and
animals. The two main source of our food are dash and animals. हमारे food के two main sources कौन से हैं? The two main sources of our food are option है हमारे पास water और plants. What are the two main source of our food? Answer is plants. Plants and animals are two main source of our food. Number 3. We get milk, meat, and eggs from blank. We get milk, meat and eggs from blank. ऑप्शन है हमारे पास plants और animals. हमको मीट, मिल्क और एग किससे मिलता है? प्लांट्स से या एनिमल से? We get it from animals. Okay, we get this from animals. We get milk, meat and eggs from animals. Number 4. Number 4 is dash and dash are P-R-O, sorry, no, dash and dash. Let me erase this. It's not dash. F-R-U-I-T-S, fruits and vegetables. Fruits and vegetables are called blank food. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को हम कौन सा फूड कहते हैं? ऑप्शंस हैं हमारे पास BODY बॉडी, BUILDING बॉडी बिल्डिंग फूड और PROTECTIVE protective food. Fruits and vegetables are called bodybuilding food or protective food. Answer is protective food. This one. Here it is this one. Okay? Fruits and vegetables are called PR. Fruits and let me read from the first one. We all need food to get energy to work and play. The two main sources of our food are plants and animals. We get milk, meat and eggs from animals. Fruits and vegetables are called protective food. ये 4 हमारे fill in the blanks हो गए. One more we have to do and then we will be done with the fill in the blanks. एक और हम अभी करेंगे fill in the blanks. 5 fill in the blanks are going to give. The 5th one I'll write
fifth one is dash is a energy, energy, giving, giving, food. Dash is an energy giving food. Dash is a energy giving food. और ऑप्शंस हैं हमारे पास. ऑप्शंस हमारे हैं एप्पल, WHEAT, wheat, which is the energy giving food. Instead of wheat I'll write chapati. Okay, CHAPPATI, chapati. चपाती मतलब रोटी. चपाती रोटी को बोलते हैं. CHAPATI भी बोलते हैं या CHAPP भी लिखते हैं. अगर इसको ऐसे भी लिखते हैं चपाती. चपाती मतलब रोटी. So dash is a energy giving food. Apple or chapati? Answer is chapati. CHAPATI. You can call it a roti also. इसको हम बोलते हैं ROTI. ठीक है. तो चपाती इज अ एनर्जी गिविंग फूड या रोटी इज अ एनर्जी गिविंग फूड. सो these are 5 fill in the blanks. Now we'll do a match the column. हम इसके बाद करेंगे match the column करते हैं. ये आप नोट कर लीजिए. तो करते हैं match the column. Let me draw a line here. Exercise B is MATCH, match the COLUMNS, match the columns. Match the columns. Now here we have 2 columns, A and other one is B. 2 columns are there. यहाँ पे हम लिख रहे हैं writing FRUITS, fruits. Number 2 is RICE, rice. Number 3 is eggs. Number 4 is BURGER, burger. Fruit, rice, eggs and burger. Here I am writing A, B, C and D. Here I am writing BODY, body, BUILDING, bodybuilding, FOOD, food. Children, you know bodybuilding food मतलब proteins. ठीक है. तो I am writing bodybuilding food और प्रोटीन इसको बोल सकते हैं. Then here I am writing UNHEALTHY, unhealthy, FOOD, food. Then ENERGY, energy, GIVING, giving, FOOD, food. And next is PROTECTIVE, protective, FOOD, food. Now you have to match these 2 columns. I have told you 2 ways of matching. 2 तरीके मैंने आपको बताए हैं मैच करने के. एक तो है जो आप लाइन ड्रॉ करके करती हो, दैट यू नो, और दूसरे थोड़ा सा मेसी हो जाता है, थोड़ा सा गंदा लगता है कॉपी. तो मैंने आपको जो दूसरा तरीका बताया है, ट्राई टू फॉलो दैट. यहाँ फ्रूट्स है. फ्रूट्स इसमें से क्या है? बॉडी बिल्डिंग फूड है, अनहेल्दी फूड है, एनर्जी गिविंग फूड है या प्रोटेक्टिव फूड है. फ्रूट इज अ प्रोटेक्टिव फूड, इजंट इट? फ्रूट इज अ प्रोटेक्टिव फूड. तो ये क्या है? डी है. So we will write D here. It means fruit is matched with protective food. Then we have rice. Rice is a energy giving food. ये है energy giving food. तो instead of drawing line, we will write here C.
Rice is mashed with energy giving food. Egg is a body building food. तो egg के आगे हम लिखेंगे A. Egg is mashed with A, body building food. Then comes burger. Burger is an unhealthy food. ये क्या है? B है. We will write here B. It is mashed with unhealthy food. In this way we can match the column. Line draw करने के बजाय हम इसको इस तरह से match कर सकते हैं. So with this we come to the end of this match the column. You can note down this, and the exercises that are given at the end of the chapter, जो chapter के पीछे दिए हुए, that we will do, that will begin in the next video. अगले वीडियो में उसको हम स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं बंद करते हैं, and we will meet again in the next video. Thank you.